Hello and very good morning, my dear students. How are you, bete? Today I'm going to start a very important topic that is called resistance in series and parallel combinations of chapter current and electricity. This topic is very important because some numericals always come from this topic, and this topic we have also done in case of 10th standard. 10th standard में भी हमने बेटे इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा हुआ है. And this topic is also quite similar to the capacitors numericals. तो जो numericals हम जब भी इसके solve करने जा रहे हैं, numericals related with the resistance in series and in parallel, that is also in similar method that we have already done in case of capacitors. So let's start its topic, that is resistance in series combinations and resistance in parallel combinations. So whenever two or more resistors are connected across series, means R1, R2, R3, and it is connected to the battery of potential V, then in series combination its potential divides. For resistance R1 potential is V1, for R2 potential V2, and for R3 potential V3. But the total value of charge and total value of current through each resistor R1, R2, R3 remain same. Okay, so if according to the Ohm's law, V is equal to IR. Okay, and for applying Ohm's law for R1, R2, R3, we have V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, and V3 is equal to IR3. And total voltage is equal to total current into total resistance in series combinations. Now we know that total voltage is equal to total V is equal to sum of voltage. Okay, so V1 plus V2 plus V3. If we substituting the values of V1, V2, V3 into equation number this, okay, then we will notice that we have this one equation. Taking I value, current is common, so common current will be cancelled from both sides, and we get in series combination its value is equal to sum of resistor. Total resistance in series is equal to R1 plus R2 plus R3. तो याद रखिए, this formula we will use in case of total resistance in series combinations. एक चीज़ और याद रखनी है इसमें, that is current through each resistor is same. Current remain same, but the potential remain divides. Series combination में current same रहता है and potentials क्या होगा, divides. Okay, so let's start next topic, that is called resistance in parallel combinations. Now we will do resistance in parallel combination if the resistors R1, R2, R3 are connected in such a way that its each end is connected with the common point A and another ends are connected to the common point B. Then we said it is a parallel combinations. If number of resistors are connected between two common points, तो आपके पास resistor 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, अगर वो किसी कॉमन पॉइंट पे ऊपर सब अटैच है, then such system is known as a parallel combination. So यहाँ पे देखिए, when connected end to end so that same current flow through each of them, मतलब one end connected to the another and another connected to the another. तो इसमें सब रेजिस्टर्स का कॉमन एक पॉइंट नहीं है. जब सबका कॉमन एक पॉइंट होगा तब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया. अगर उनको एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा ऐसे जुड़े हैं, then we call it a series. And if their alls are connected across in parallel combinations, if all are connected to a common point, तो अगर वो कॉमन पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, then we call it is a parallel combinations. Okay, so in this case we have value of current. Now in this part we take current divides. In parallel combinations current divides. So total current is moving at point A, then after it has three paths, I1, I2, I3. So I1 current will pass through resistor R1, I2 through R2 and I3 through R3 resistors. So
So current divides but the voltage remains same. Here current divides but the values of voltage remain same. If current divides, then total current flowing through it is equal to sum of current. तो बेटे यहाँ पे देखिए, so from terminal A to the terminal B the value of voltage remain same. इसका वैल्यू सेम रहेगा बट करंट डिवाइड्स. Again by applying the Ohm's law, I1 is equal to V over R1, I2 is equal to V over R2, I3 is equal to V over R3. सब वैल्यूज को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, एंड टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस. इसको भी आप अगर पुट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी. एंड इन द लास्ट वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ वी. बेटे कॉमन आ जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद, वी विल गेट दिस वन फॉर्मूला. ठीक है, तो एक चीज़ बेटे जो आपने याद रखनी है, दैट इज़ अगर आपके पास 3 रेसिस्टर पैरेलल में होंगे तब देन यू विल यूज़ दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला. ठीक है, अगर आपके पास 2 रेसिस्टर्स है पैरेलल्स में, ठीक है, तब आप उसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो लाइक दिस. मान लीजिए आपके पास 2 रेसिस्टर्स है, सो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2. तो हम ये फॉर्मूला लगाने के बजाय इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं बेटे. इसका कॉमन पॉइंट लेने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन आफ्टर इसको रिवर्स किया एंड वी विल यूज़ दिस वैल्यू. बजाय इसके हम ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स जो होते हैं ना बेटे, वो सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ आती है, मान लो इसकी वैल्यू है 1.5, बट एक्चुअल में आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 5, क्योंकि वो स्टूडेंट इसको रिवर्स करता ही नहीं है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसकी वैल्यू लिख देगा 1/5, जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 5. तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, दैट इज़ वाई वी विल यूज़ दिस वन फॉर्मूला. R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसिस्टर्स. ठीक है बेटे, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट्स न्यूमेरिकल्स, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट्स क्या है हमारे पास, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. तो जब भी याद रखिए रेसिस्टेंस आपको सर्कल की फॉर्म में होगा तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहाँ से देखिए ये आपका हुआ ना टर्मिनल वाला पॉइंट. टर्मिनल क्या होता है बेटे, एक हमारे पास होता है ब्रांच, एक होता है जंक्शन. जंक्शन ये देखिए इस पॉइंट से ये सारा का सारा ये जहाँ तक का वैल्यू होगा इसको बोलते हैं ब्रांच, क्योंकि ये सिंगल पाथ है ना बेटे, देखो सिंगल पाथ है. और जहाँ पे 3 टर्मिनल्स हों, 3 पाथ, उसको बोलते हैं जंक्शन. एक लाइन यहाँ से, एक ऊपर और एक नीचे, ये यहाँ पे 3 जंक्शन है जहाँ पे 3 लाइंस जो है वो मीट करती हैं. तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन. तो याद रखिए यहाँ पर भी हमारे पास एक जंक्शन बन रहा है अप टू दिस एंड दिस. अगर जंक्शन बन रहा है तो इसका मतलब ऊपर का रेसिस्टेंस होगा 2R और नीचे का भी 2R. तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का, पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों का 2R 2R. सिंपल से हम फॉर्मूला लगा देंगे, वही फॉर्मूला जो मैंने अभी दिखाया आपको, दैट इज R इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टर ओवर सम ऑफ रेसिस्टर. याद रखिए दिस फॉर्मूला वी विल यूज इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसिस्टर्स. तो बेटा बड़ा सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, 2 2 का 4 और 4, तो इसका वैल्यू आ गया 1. चलिए, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेट्स ट्राई सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट. करंट वैल्यू फाइंड करनी है. देखो करंट फाइंड करना है, वोल्टेज आपके पास कितना है बेटे, 2 वोल्टेज. और ये कॉम्बिनेशन देख लो, जब भी आपके पास एक ट्रायंगल हो या फिर हो स्क्वायर, तो उसमें क्या करते हैं, ए बी और सी को आप बेस मान लें और ऊपर का जो पाथ होगा वो उसको सीरीज़ मानेंगे. ठीक है, तो चाहे ऊपर में ये बनेगा सीरीज़ और ये दोनों इसके क्या हो गए, पैरेलल. तो ये 30 30 की तक वैल्यू आएगा, 30 30 60 60 और 30, ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल. इन दोनों को सॉल्व करके टोटल रेसिस्टेंस आपके पास आ गया, वोल्टेज आ गया. रेसिस्टेंस वोल्टेज पता है, करंट आपका ईजिली आ जाएगा. सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, लुक एट दिस. ठीक है, सो ए सी बी आपका पैरेलल बन जाएगा, उसी को मैंने बोला था ना, 30 30 एक बनेगा आपका 60 60 और 30 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनेगा 20. वोल्टेज आपके पास 2 है, करंट का वैल्यू आ गया.
लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बेटे, कहता है डिटरमिन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रसिस्टर। डिटरमिन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रसिस्टर। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप निकालना बेटे अक्रॉस द रसिस्टर्स R1, मतलब वोल्टेज निकालनी है R के अक्रॉस इन द सर्किट गिवन बिलो। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल। आपके पास गिवन क्या है, टोटल बैटरी का वैल्यू है 60 वोल्ट, R1 R2 ऑलरेडी गिवन टू यू। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसका वोल्टेज। तो आपको पता है वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, अगर मैं बोलूँ V का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलेंगे V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR होगा तो करंट निकलेगा तभी तो फिर वो वोल्टेज आएगी ना। तो सबसे पहले करंट निकालेंगे। तो करंट हम टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल EMF वैल्यू गिवन है, टोटल रसिस्टर निकालो, तो वोल्टेज रसिस्टर होगा तो करंट भी आएगा। सो लेट्स ट्राई दिस वन। अब देखिए, ये वाला 5 ओम, ये 10 ओम, ये दोनों आपस में कैसा कॉम्बिनेशन है, 5 और 10 सीरीज़, ये दोनों सीरीज़ होंगे और ये सीरीज़ सॉल्व करके इसके साथ कैसा होगा, पैरेलल। सीरीज़ हो गए तो 10 + 5 हो गया 15, 15 और 10 आपस में कैसे हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके वैल्यू हमारे पास आ गया 6 ओम। ये 6 ओम अब 18 के साथ कैसा कॉम्बिनेशन हो गया इसका, सीरीज़। सीरीज़ होगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 24 ओम। ये 24 ओम है तो टोटल करंट कितना आ गया, टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तो हमने अब निकालना है रेजिस्टेंस अक्रॉस R1, ये है आपका R1। तो R1 क्या वैल्यू क्या होता है बेटे, V इज इक्वल टू IR1। करंट को R1 से मल्टीप्लाई कर दो वो वोल्टेज आ जाएगा। सो V इज इक्वल टू IR1, तो ये आपका वैल्यू आ गया करंट और ये आपका रेजिस्टर, ये वैल्यू आपका वोल्टेज बन गया। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटे फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2, ठीक है, इसने तो एक ही बोला है। अगर मैं क्वेश्चन में आ जाए भी दो दो फाइंड करो, सेकंड भी फाइंड करो, तो R2 का वैल्यू कितना था 10, तो R2 का 10 अगर करना है तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू IR2। करंट को इसके साथ कर दोगे मल्टीप्लाई, इसका वोल्टेज आएगा, करंट को इसके साथ करोगे इसका भी वोल्टेज आएगा। तो आपको तीनों का भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, a letter A consists of uniform wire of resistance 1 ohm per centimeter. The sides of letters are each of 20 centimeters। ठीक है, एक साइड कितनी है बेटे, 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड क्रॉस पीस ऑफ द मिडल इज 10 सेंटीमीटर। तो ये कहता है एक साइड ऐसी है एक साइड ऐसी है, तो जो इनके दोनों के मिडल में जो क्रॉस होता है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 10, और ये भी हुआ 20 का, ये भी 20 का, ये हुआ 10 का। ठीक है, तो इसका जो एपेक्स होता है टॉप दोनों का, उसका जो एंगल बनता है वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लेग। इसकी जो टू लेग्स है उसके एंड में टोटल वैल्यू रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसमें आपके क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी बनानी है। इसकी डायग्राम बनेगी लाइक दिस इज द डायग्राम। तो टू लेग्स है बेटे, दिस इज 20, दिस इज 20, एंड जो सेंटर में मिड में करती है दैट इज ऑफ 10। अगर ये A और C तक 10 हुआ तो ये वाला कितना हुआ, ये A और C 20 है ना, तो AB भी 10 हुआ और BC भी 10 हुआ, फिर CD भी 10 है और D जो होगा E वो भी 10 है, ये भी 10 है। तो अगर हमने इसको सॉल्व करना, सब रेसिस्टर्स की वैल्यू कितनी है, 10 10 10, आप इसकी वैल्यू फाइंड करो जी। देखो अगर ट्रायंगल हो तो बेस वाला रहने देना, ऊपर वाले दोनों टर्मिनल क्या होंगे, सीरीज। 10 10 कितना हुआ, 20 20, 10 के साथ बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशंस। अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, 20 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 20 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके वैल्यू आ गया R इज इक्वल टू 20/3 ओम। तो R/20 ये बन गया, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 20/3। अब ये R1 R5 और R4 ये तीनों कैसे हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐड कर दो 10 + 20/3 + 10 टोटल रेजिस्टर दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इसको ट्राई कीजिए बेटे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है सेट ऑफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, RO। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव इफेक्टिव रेजिस्टेंस X ohm and when connected in parallel have effective resistance Y ohm।
फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एक्स वाई, ठीक है। एन नंबर्स ऑफ रजिस्टर है, एन नंबर, इसका मतलब कि हमारे पास एक्स क्या है, एन नंबर ऑफ रजिस्टर, R1 R2 R3 अप टू एन। कितना आ गया, एन आर, ये आ गया इसका टोटल। दिस इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/y लेते हैं, उसमें भी कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी n/r। तो हम फिर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू आएगा r/n, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू r/n, तो मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा आर स्क्वायर। तो एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज द रिलेशनशिप अलॉन्ग दिस टाइप। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिस्टर्स टेक ए करंट ऑफ 7.5 एम्पियर फ्रॉम 30 वोल्ट सप्लाई। इफ द 2 सिस्टर्स आर 10 and 12, फाइंड द थर्ड वन, ठीक है। 3 सिस्टर है, 2 का वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थर्ड वन। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है आर इज इक्वल टू होगा V/I। पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टर कितना है, 4 ओम। तो हम क्या करेंगे, इस पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टर फाइंड करके पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। RP का वैल्यू 4 है, R1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं गिवन, वो फाइंड करना है। बाकी तो आपका सिंपल ही है, उसको उधर लेके जाओ, ये दोनों उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव के बाद सॉल्व करो, वैल्यू आ जाएगा R3 इज इक्वल टू 15 ओम। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ सम complex questions, that is why I choose this one topics. So let's start now. Example number 59. ये मैं आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ बेटे, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको एक डायग्राम आएगी ऐसी कॉम्प्लेक्स, उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपने इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है क्रॉस इट्स एंड्स। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है करंट और मे बी है वोल्टेज। ये देखिए नेटवर्क, इस नेटवर्क में टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, इसने बोला फाइंड करो रेजिस्टेंस पहले ए बी का, फिर ए डी एंड देन ए सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी, ए बी का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी। अगर ए बी का करना है तो इसके एक्सट्रीम 2 पॉइंट कौन से होंगे, ये वाले। इस यहाँ से सॉल्व करते हुए हम यहाँ पर आएंगे और फिर ए बी का टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 और 7 कैसे कॉम्बिनेशन है, सीरीज, तो बन गया 10। ये 10 के साथ कैसा बन गया, पैरेलल होके वैल्यू कितना आ गया इसका 5। ये 5 और ये 5, ये फिर से कैसा होगा, दोनों सीरीज होगा, तो सीरीज होके बन गया 10, और वो 10 इस 10 के साथ बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ए बी में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5। ओके, अब और क्वेश्चन करना है ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक। अब हमने ए से डी तक जाना है ऐसे, तो इसके ऑपोजिट ये वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 और 5 दोनों सीरीज़ होंगे, इस सीरीज़ को 10 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जो आएगा उसके साथ 7 क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे क्योंकि सीरीज़ होगा, और उसको 3 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद आपका ये आ जाएगा। ऐसे ही आप ए और सी का फाइंड कर सकते हो। ए सी का तो बहुत ही सिंपल है। ए सी का कैसे सिंपल, देखो ए और सी है, एक रेजिस्टर ए है, ये दोनों सीरीज़ में है और नीचे भी दोनों सीरीज़ में है, इनको ऐड कब करो, सीरीज़ है तो 7 + 3 कितना आएगा, 10, ये भी 10, ये भी 10, और नीचे कितना आएगा, 10 + 15, ये 15। तो 10 10 15 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के वैल्यू इसका आ जाएगा। और है एक वेरी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल, ये देखिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस बात है आपको इसको समझने के लिए। ओके, अफेक्टिव रेजिस्टेंस है ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके एक्सट्रीम पॉइंट से। एक्सट्रीम पॉइंट देखिए ये जाएगा ये वाला पॉइंट। 3 और 3 कैसा होगा, सीरीज, ये सीरीज की हुआ तो 6 आ गया, वो 6 इस 6 के साथ कैसा बनेगा, पैरेलल। कितना बनेगा, पैरेलल की वैल्यू करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया इसका, वैल्यू आ जाएगा 3। उस 3 को फर्दर 3 के साथ किया, सीरीज है, फिर वो पैरेलल बन गया, फिर वे सीरीज़ है, फिर वे पैरेलल है, फिर ये सीरीज़ है, फिर ये पैरेलल। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे, तो लास्ट में हमारे पास इसमें
और 3 ओम 3 ओम 3 ओम ही वैल्यू इसकी आती जा रही है बेटे। तो लास्ट में अगर फाइनली ए बी की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इसका बन जाएगा 2 ओम। ईजी है। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। तो बेटे ऐसे ही आप क्वेश्चन इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर है आपके पास 61, 62 और फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट ए बी, ए और बी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन द स्विच एस इज ओपन एंड व्हेन क्लोज। जब ये क्या हो ओपन, अगर ये ओपन हो गया तो करंट इसमें से नहीं जाएगा, खुला है ना, तो ये आपका ऊपर वाला नीचे वाला कॉम्बिनेशन ही रहेगा। दीज टू आर सीरीज, दीज टू आर सीरीज। सीरीज को कितना होगा, ऐड करो तो 18 18, 18 18 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया तो वैल्यू आ गया 9। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 9 ओम व्हेन द सर्किट इज ओपन, ठीक है। अब इसको कर देंगे क्लोज। जब इसको करेंगे हम क्लोज तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा बेटे, क्लोज करने के बाद हमने देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ आर लेफ्ट आर इन पैरेलल। अब देखिए ये हो गया आपका क्लोज करने के बाद 6 और ये 12। अब ये करंट इसमें जाएगा तो करंट इसमें डिवाइड होकर सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। 6 और 12 कैसा हो गया, पैरेलल। ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, दोनों को पैरेलल पैरेलल करके बाद में ऐड कर दो। 6 और 12 का वैल्यू कितना आ गया 4, और इसके साथ वाले का भी 4, 4 और 4 कितना आ गया 8। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपको गिवन हैं। इस क्वेश्चन में भी आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। मैं आपको और भी क्वेश्चन बता देता हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चंस हो गए, ऐसे क्वेश्चंस हो गए, इनमें सब में क्या फाइंड करने हैं हम, इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है बेटे। सो ट्राई दिस क्वेश्चंस, आप ट्राई कीजिए इसको, इजी क्वेश्चंस हैं एंड वी विल लर्न नेक्स्ट टॉपिक ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू।